Hello everyone. This is CA Prajakta Mondhe. Hope बहुत अच्छे से चल रही हैं for the upcoming examinations. In this video, I'm going to discuss the revision test paper released by the institute for the CA final examinations. Okay, so let us start. Now, there is no separate statutory update that has been released by the institute for CA final examinations. So basically, the study material that has been released by the institute is covering all the relevant circulars up to 31st of July 2025, and the study material is sufficient from your examination point of view. So then they have not issued any separate statutory update. The judicial update has been issued wherein certain case laws have been included that I will be discussing separately. So in this video, I'm going to cover the objective questions of the revision test paper. Okay. Now let us start. So overall, the RTP is not very much difficult, I would say. The objective questions or the case scenarios are quite decent. लेकिन हाँ, थोड़ा सा कहीं कहीं पर लीक से हटके उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं that we will have to be strong conceptually so that we can solve the answers properly. चलो, so शुरू करते हैं. Mr. Nylon, a citizen of country X, came to India on 14th of July 2025. On 13th of October, he left India for China on a business trip. He came back on 28th of February and stayed in India till 14th of April. ठीक है, तो इंडिया में 25-26 में कब कब था वो देखो. 14th जुलाई से लेकर के तो 13 अक्टूबर तक था, है ना. और फिर 28 फरवरी को आया एंड देन 14th अप्रैल को ही लेफ्ट. ठीक है, तो हमारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 25-26, असेसमेंट ईयर इज 26-27, है ना. दैट वी ऑल वेरी वेल नो. चलो, तो ये उसकी डेट्स हैं जब जब वो इंडिया में था. He visits India every year for 85 days for providing technical services to Indian customers. तो वो हर साल इंडिया आता है कुछ दिन के लिए और इंडिया में सर्विसेज देके जाता है. During his visits to India, Mr. Nylon carried on his professional activities from same premises where he stayed as a paying guest. तो वहां पर से वो सर्विसेज देता है और प्रोफेशनल सर्विसेज रिलेटेड टू PQR LLP. ठीक है, तो उसका जो क्लाइंट है जिससे वो वहां से जिसको सर्विसेज दे रहा है वो क्या है, PQR LLP. He paid rent of 85,000 per month to Mr. Amit, a salaried employee, for use of premises, and accordingly the said premises constituted his fixed place of profession. Okay, तो उसके लिए वो फिक्स प्लेस हो गया, मतलब पी हो गया जहां से उसने PQR को सर्विसेज दी हैं वो. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. He earned the following income during India during the previous year 25-26. FTS मिला है उसको XYZ लिमिटेड से अंडर एन अग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ क्वेश्चन में क्लियरली पीई के बारे में बोला है, लेकिन द सर्विसेज विच आर एट्रीब्यूटेबल टू द पीई आर ओनली विद रिस्पेक्ट टू PQR LLP, है ना. आगे आते हैं डिटेल में क्यों ये रेलेवेंट है, बट अभी के लिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि एफटीएस उसने दो कैटेगरी में दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं. वन कैटेगरी इज रिलेटेड टू द पीई एंड अदर इज नॉट एसोसिएटेड विद द पीई, है ना. तो XYZ की सर्विसेज आर नॉट एसोसिएटेड विद द पीई, PQR के सर्विसेज आर एसोसिएटेड विद पीई. ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर दिस एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर दिस. ठीक है, रेंटल इनकम फ्रॉम कंट्री एक्स जहां पर उसका सिटीजनशिप है वहां से रेंट इनकम आई है और उसके लिए लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे किया है. ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, income from mutual funds under specified under 1023D which are purchased in foreign currency, and interest from Indian company again which is subscribed in foreign currency. ये सारी उसकी incomes हैं. ठीक है, Mr. Nylon is paying tax as per 115 BSc 1A, that is new regime, that is the default regime now. His sister Mrs. Nile married to an Indian citizen and she resides in India. She is a proprietor of Mr. Dynasty Beauty Lounge. The assessment for the AY 24-25 was made under 143(3), scrutiny assessment हुआ and 1st of December को order आई है. The assessing officer added 16 lakhs on account of unexplained expenditure. However, she contended before the CIT appeal that this is professional fees paid to a consultant but could not substantiate with any invoice.
CIT appeal did not accept contention and passed the order against her on 15th of March. ठीक है, तो दो अलग अलग कहानी है एक भाई की बहन की, एक एक करके चलते हैं क्या बोला गया है. DTAA does not need to be considered unless wherever specified. ठीक है, चलो क्या बोला है. What would be the residential status of Mr. Nylon? तो ये तो सीधा सीधा सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है. सबसे पहले हमको नंबर ऑफ डेज जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो हमने ऊपर लिखी है डेट्स, कब कब वो इंडिया में रहा है ना. लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज. सो जुलाई में अगर हम काउंट करें तो 31 minus 14, that is 17 days he has been in India. 13 डेज इन अक्टूबर, फेब्रुवरी का एक दिन हो गया, और यहां तक अप्रैल आ जाएगा तो आप मार्च तक कट ऑफ ले लोगे. सो मार्च के पूरे 31 डेज आ गए, तो आपके टोटल डेज जो है वो 62 डेज हो रहे हैं, राइट. ठीक है, नाउ अब व्हेन यू कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस, द फर्स्ट कंडीशन दैट इज टू बी चेक्ड इज that whether the particular person is in India for a period of 182 days or more. तो 182 days तो फुलफिल नहीं हो रहा है. सेकेंड कंडीशन इज 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स. तो जिस साल की बात हो रही है उस साल कम से कम 60 डेज होना चाहिए, वो हमारा हो रहा है. एंड प्रीवियस 4 ईयर्स, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, अगर आपका 365 डेज या उससे ज्यादा हुआ है तो देन यू आर कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट. ठीक है, सो लेट अस सी. यहाँ पर हमारा 365 डेज क्रॉस हो रहे हैं क्या, नहीं. हर साल 85 डेज के लिए आता है, मैं मल्टीप्लाई करती हूँ अगर 4 से तो 340 डेज होते हैं. दैट मीन्स हमारी दोनों ही बेसिक कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो यू बिकम अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. नाउ बीइंग अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी. इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया और विच इज रिसीव्ड इन इंडिया. उसके अलावा कोई भी इनकम उसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी. प्लस टैक्स रेट्स कौन सी लगेंगी, जो नॉन रेसिडेंट की टैक्स रेट्स होती हैं वो सारी टैक्स रेट्स लगानी पड़ेंगी, है ना. चलो सो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है. व्हाट विल बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर नाइलॉन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27. चलो टोटल इनकम निकालनी है. हमने अभी बात करी टोटल इनकम विल कंसिडरिंग द इनकम अक्रूइंग इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया. एफटीएस मिला है XYZ से. XYZ से जो एफटीएस मिला है दैट इज नॉट अट्रीब्यूटेबल टू पीई, तो वो ग्रॉस बेसिस पे टैक्स होगा एज पर 115A because it is not associated with the PE. So under an agreement approved by the government of India, it will be taxed under 115A, that is on gross basis. तो ये तो 25 लाख ऐसे के ऐसे इनकम में ऐड हो जाएंगे. फीस फॉर टेक्निकल सर्विस फ्रॉम मिस्टर्स PQR. PQR is basically PE related. Agreement not approved by the government of India. सो 14 लाख का उसको इनकम हुआ है और उसने 4 लाख खर्च किया है. नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स विच आर टू बी कंसिडर्ड हियर. ऊपर उन्होंने एक एक्सपेंस दिया है आपको रेंट का, जो कि PQR के रिस्पेक्ट में है. Because PQR is relating to permanent establishment, any expenses attributable to that service will also be allowed as deduction. अब यहाँ पर 85,000 इस 4 लाख में इंक्लूडेड है कि नहीं, ऐसा क्लियरली नहीं दिया हुआ है. तो लेट अस अज्यूम कि दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इट कैन बी अंडरस्टूड कि ये टोटल एक्सपेंडिचर है ना. मतलब जो भी खर्चा हुआ तो वो रेंट भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो हम अलग से रेंट के एक्सपेंस को ऐड नहीं कर रहे हैं 4 लाख कंसिडर करके. सो 14 लाख माइनस 4 लाख, दैट इज 10 लाख विल बी योर टैक्सेबल इनकम दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द पीई, है ना. वो अपना 10 लाख की इनकम हो गई. अब रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड इन कंट्री एक्स नॉट टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज इट इज नॉट अक्रूइंग इन इंडिया. तो एक्स से रिलेटेड जो भी है आपका रेंट इनकम एक्सपेंस वगैरह वो सब हमारे लिए पिक्चर से ही बाहर हो गया. Dividend income taxable. Income from units of mutual funds purchased in foreign currency, yes, taxable in India. And similarly, interest on debentures will also be taxable in India. Again, all these 3 incomes will be covered under the okay tax calculation अभी नहीं पूछा ना, ठीक है. तो मैं आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आपको टैक्स का बताती हूँ. तो ये हमारा हो गया इनकम. So 25 lakh plus 10 lakh, 8 lakh, 7 lakh, that is 45 lakh 25,000 will be your टोटल इनकम, है ना. सो ये हमारी इनकम आ गई. चलो टैक्स लायबिलिटी क्या है, तो हमारी बाकी की सारी इनकम्स ही 20% में आ रही है. कंसिडरिंग नॉन रेसिडेंट, हमारे ऊपर सारे नॉन रेसिडेंट के रेट्स अप्लाई होंगे. सो हमारा ये अगेन दिस इज गेटिंग कवर्ड इनटू 115A. अगेन डिविडेंड पे 20%, इंटरेस्ट हमारा जो है डिबेंचर्स वाला, mutual funds units, all this will be considered as 20% taxable as per the provisions of non-resident taxation.
सो इन सबके ऊपर 20% रहेगा, एक्सेप्ट फॉर हमारा जो ये 10 लाख है, क्योंकि ये पी से रिलेटेड है, ये 115 ए से बाहर चला जाएगा और इस पर रेगुलर टैक्स रेट्स लगेंगे। रेगुलर मतलब क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो इसके ऊपर स्लैब रेट लगाए जाएंगे। अगर ये कंपनी होती, मतलब फॉरेन कंपनी होती, तो फिर आप 35% से टैक्स लगाते। तो 10 लाख पे नॉर्मल स्लैब, क्योंकि उसने बीएससी ऑप्ट किया एज इन ही इज इन द डिफॉल्ट रेजीम, तो आपके ऊपर स्लैब रेट टैक्स लगाएंगे। 4 लाख तक नो टैक्स, 4 से 8 लाख तक आप कैलकुलेट करोगे आपका 5%, देन 10%, एंड अकॉर्डिंगली 10 लैक्स के ऊपर आपका टैक्स आता है 40,000। सो बाकी सब पे 20% का रेट है। सिंपल हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने सब पे इसलिए लिखा है ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आए कि किस पे कौन सा रेट लगाना है। या फिर मैं इसको ऐसा भी कर सकती हूँ, सब पे 20% हो गया प्लस 40,000, सो दैट इज योर 7,45,000। सरचार्ज नहीं लगेगा बिकॉज बीइंग एन इंडिविजुअल उसकी इनकम 50 लाख क्रॉस नहीं हो रही है। तो सेस लगा दिया मैंने, तो मेरी टोटल इनकम आ गई, सॉरी टैक्स लाइबिलिटी आ गई 774,800। सो यहाँ पर मेरी टैक्स लाइबिलिटी इज 774,800, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे क्या बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन एफटीएस considering the DTAA for India and country X provides that FTS is taxable in India at the rate of 25% irrespective of the agreement being approved or not। मतलब दोनों पे ट्रीटी का रेट 25% लगेगा। अब बीइंग अ नॉन रेसिडेंट सेक्शन 90 हमको क्या बोलता है कि विच एवर इज बेनिफिशियल, अगर एक्ट का रेट ज्यादा है और DTAA का रेट कम है तो आप DTAA का रेट लगाओगे, और अगर एक्ट का रेट कम है तो एक्ट का रेट लगाओगे, विच एवर इज बेनिफिशियल। सो इन केस ऑफ XYZ लिमिटेड हमारे पास एक्ट में जो रेट है वो है 20% TDS और यहाँ पर है 25%। तो ऑब्वियसली हम एक्ट का रेट यूज करेंगे, दैट इज 20% रेट विल बी यूज। सो 5,20,000 कैसे निकाला, ये सिंपल है। हमारा टोटल अमाउंट था कितना, 25 लाख है ना, हाँ, तो 25 लाख पे हम लोग लगा दिया 20%। अब आप बोलोगे कि ये तो 20% से 5 लाख होता है। कंसिडरिंग बिकॉज ही इज ए नॉन रेसिडेंट, जब आप टीडीएस विथहोल्ड करते हो आपको सरचार्ज और सेस भी कंसिडर करना पड़ता है। तो सरचार्ज तो लगेगा नहीं, लेकिन 4% का सेस लगाना पड़ेगा। तो आप एक्ट के रेट से जब भी टीडीएस करोगे आपको कंसिडरिंग सेस टैक्स करना पड़ेगा, कंसिडरिंग सरचार्ज टैक्स करना पड़ेगा। तो 20% प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड सेस, योर टीडीएस इज 5,20,000। For PQR LLP, because that is a PE issue, because there the rate of tax as per the act will be higher, here you have to consider treaty rate। तो यहाँ पर आपका जो इनकम है, जो अमाउंट है उसके ऊपर आप ट्रीटी रेट से टैक्स करोगे, दैट इज 25%। वन थिंग विच इज टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट यहाँ पर यू नीड नॉट टू कंसिडर सेस और सरचार्ज। सो वेन एवर यू अप्लाई DTAA रेट, दैट इज द फाइनल रेट, है ना, उसमें अलग से हम फिर सेस सरचार्ज ऐड नहीं करते हैं। सो योर आंसर विल बी 3,50,000। अब देखो, अगर आप देखोगे तो इन्होंने आपको 364 भी दिया है, यहाँ पर सेम है 520 520, पर इधर 364 भी दिया है। अब 364 कैसे आ रहा है तुम्हारा, अगर तुम 3.5 लाख पे सेस जोड़ देते हो तो तुम्हारा 364 आ जाता है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि सेस लगेगा कि नहीं, है ना, वो ध्यान रखना है कि DTAA रेट है तो आपको सेस लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स में आई ऑलवेज से दिस, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग डालेंगे ताकि आप गड़बड़ करो, बट आपको गड़बड़ करनी नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए, नाउ व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिसेस नाइल। अब भाई के सारे सवाल हो गए, अब आ गए हम बहन पर। हुआ क्या था, उसने उसका असेसमेंट हुआ था, सीआईटी अपील में गई थी, सीआईटी अपील में अनफेवरेबल ऑर्डर आ गया था। अब ऑप्शन अवेलेबल क्या है अगेंस्ट सीआईटी अपील, ऑब्वियसली यू हैव टू अपील टू द ट्राइब्यूनल। सो इफ यू विश यू कैन अपील टू द ट्राइब्यूनल। तो अब यहाँ पर रिवीजन के लिए जा नहीं सकते कमिश्नर, क्योंकि सीआईटी अपील्स के पास अब ऑलरेडी चले गए हो। शी वुड बी लाइबल टू पे बट कैन नॉट फाइल, नो ऐसा कुछ नहीं है, अपील फाइल कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन इफ इट इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, यस, बट इन दिस केस दिस इज नॉट अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। सो यहाँ पर आपके केस में सोल्यूशन इज टू फाइल एन अपील टू द ट्राइब्यूनल, है ना। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू अपील। Now next illustration, why whether Mr. Nylon, अच्छा ओके, भाई का क्वेश्चन बचा है, is required to deduct tax at source on the rent paid। अब रेंट पेड के हमारे दो प्रोविजंस होते हैं, एक ऐसा जो टैक्स ऑडिट असेसीज पे लगता है, मतलब टैक्स ऑडिट असेसीज एज इन इंडिविजुअल्स जिनका टर्नओवर
1 करोड़ 50 लाख से क्रॉस होता है, जो पहले ही बेसिकली आपका बेसिक लिमिट होता था टैक्स ऑडिट का, आजकल तो मोस्टली सब पे 10 करोड़ का लिमिट लगता है। सो जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख क्रॉस होता है, एक सेक्शन उस पे लगेगा। एक ऐसा सेक्शन 194 IB विच इज एप्लीकेबल वेयर द इंडिविजुअल इज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द मेन रेंट सेक्शन। सो वहां पर अगर आप आ रहे हो तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा इफ द रेंट पेड इंक्रीज इज मोर देन 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। सो यस, इन दिस केस यू हैव टू डिडक्ट टैक्स एंड द रेट इज 2%, है ना। सो सामने वाला जो है वो रेसिडेंट है, आपको 2% से इसके ऊपर टीडीएस करना पड़ेगा। सो यस, मिस्टर नाइलॉन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन द रेंट पेड टू मिस्टर अमित। ठीक है, सो दीज आर द प्रोविजंस टू बी केप्ट इन माइंड। चलो आगे चलते हैं, केस सिनेरियो 2। This is also a good case scenario. Mr. Kunal Verma, a resident individual and a partner in consulting firm, resident individual, for फरमाया जाए, filed his return of income under 139(1), due date में फाइल किया है। During the previous year, he sold listed equity shares through recognized stock exchange on which STT was paid, which resulted in a long-term capital gain of 68 lakhs. तो 112A की इनकम है। On 16th of December 2025, he also sold a residential house property for 115 lakhs, which he had acquired for 25 lakhs in 2011। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म हो गया। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ही इन्वेस्टेड 30 लाख इन अ न्यू हाउस। तो हमको 54 का एग्जेम्पशन मिल सकता है, बिकॉज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, टाइम लिमिट के अंदर है अगर, तो आप इसको 54 में कंसिडर कर सकते हो। अब ये क्योंकि पार्टनर है कंसल्टिंग फर्म में, वहां से इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है 2.5 लाख और रेम्यूनरेशन मिला है 35 लाख। 2.5 लाख का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा, सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेम्यूनरेशन अगर फर्म के हाथ में अलाउ हुआ है तो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सो रेम्यूनरेशन इज फुल्ली अलाउएबल अंडर सेक्शन 40B। जितना रेम्यूनरेशन अलाउएबल है उधर उतने के ऊपर हमको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। सो 35 लाख इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो गया। फर्दर, मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ फॉरेन टूर पैकेज for 28 lakh on which tax was collected at source under 2061G, मतलब हमारा फॉरेन रेमिटेंस वाला जो TCS है और उस पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा था। However, he failed to claim the credit of such TCS and also did not disclose the transaction in the relevant schedule. The return was processed under 143(1), where excess liability was computed due to incorrect treatment of long-term capital gain. Credit for TCS was not allowed and interest was levied। ठीक है, ये जब प्रोसेस हुआ, जब 143(1) आया तो ये सारे एडजस्टमेंट्स उन्होंने कर दिए, है ना। क्या क्या एडजस्टमेंट किए, पहला तो टैक्स गलत निकाला बिकॉज उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सही से डिस्क्लोज नहीं किया रिटर्न में। टीसीएस का क्रेडिट उन्होंने नहीं दिया बिकॉज आपने क्लेम ही नहीं किया रिटर्न में, और इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। ठीक है, बाय द टाइम मिस्टर वर्मा नोटिस्ड द टाइम लिमिट टू फाइल द रिवाइज रिटर्न as well as rectification had expired. Consequently, he filed a revision petition before the principal of commissioner enclosing contract notes, investment proofs, and 26 AS, and contended that the mistakes were bona fide and resulted in undue hardship. The principal commissioner, however, rejected the revision petition that once the assessee had consciously offered the income to tax, return could not be altered by the provisions of 264। तो उनका ऐसा कहना है कि भाई तुमने ही गलत डाला, तुमने ही तुम्हारे रिटर्न में ऑफर किया, तो तुम्हारे रिटर्न की गलतियां तुम 264 में जाकर के नहीं सुधार सकते हो। मिस्टर कुणाल वर्मा इज पेइंग टैक्स एज पर 115 BAC 1A एंड सी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ वन MCQs। क्या क्या ऑप्शंस हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कुणाल एंड टैक्स देयर ऑन इफ एनी। तो कैपिटल गेन में हमको 68 लाख तो ऐसा का ऐसा ही दे रखा है क्वेश्चन में, जो 112A का है। कैलकुलेट हमको करना है प्रॉपर्टी सेल पर, सिंपल सा है केस। सेल्स कंसिडरेशन दिया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है। अब इसमें से आपने कॉस्ट माइनस करी तो गेन आ गया, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है विद इन टाइम लिमिट, सो आप 30 लाख का डिडक्शन क्लेम करके नेट आपकी टैक्सेबल कैपिटल गेन विल बी 60 लाख। तो 60 लाख आ जाएगा आपका कैपिटल गेन नॉर्मल प्रॉपर्टी सेल के ऊपर, और 68 लाख तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 128 विल बिकम योर इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट टैक्स रेट, तो 112A पे पहले लगा देते हैं, सिंपल है। 1.25 लाख का आपको एग्जेम्पशन है। 1.25 लाख के ऊपर 1,25,000 that I mean
सेकेंड, हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया हमारा। सो 1,25,000 के ऊपर जो भी हमारा गेन है दैट विल बी टैक्स एट 12.5%। दीज आर द अमेंडेड टैक्स रेट्स। सो 12.5% के हिसाब से टैक्स रेट बैठता है, टैक्स अमाउंट बैठता है 834,375। टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी, अब देखो यहाँ पर हमारा एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो 112 सेक्शन है उसमें अमेंडमेंट हुई है। वी ऑल वेरी वेल नो दैट द रेट नाउ इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% टू 12.5%, प्रोवाइडेड यू कैन नॉट क्लेम इंडेक्सेशन। तो जब हमने इनकम कंप्यूट करी कैपिटल गेन में, तब हमने इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया है ना। तो हमने इनकम कौन सी लगाई, 60 lakhs विच इज विदाउट इंडेक्सेशन, बिकॉज मोड ऑफ कंप्यूटेशन में से इंडेक्सेशन उन्होंने हटा ही दिया है। लेकिन जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे 112 में, वहां पर दे हैव गिवन बोथ ऑप्शंस, यू हैव टू कंपेयर। अगर ओल्ड प्रोविजंस मतलब विथ इंडेक्सेशन और रेट 20% कंसिडर करके आपका टैक्स कम आ रहा है एज कंपेयर टू द न्यू रूल्स दैट इज विदाउट इंडेक्सेशन एंड 12.5%, देन दैट एक्सेस शैल बी इग्नोर्ड। सो दे हैव गिवन अ रिलीफ टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स कि भैया अगर तुम्हारा पुराने तरीके से टैक्स कम आ रहा था, क्योंकि हमने उठा के एकदम से इंडेक्सेशन हटा दिया, तो जो लोग बेचारे प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे थे 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल, 15-15 साल से कि हम बेचेंगे तो हमको इंडेक्सेशन मिलेगा और हो सकता है हमको लॉस हो जाए या हमको टैक्स कम लगे, वॉटेवर, उन सब लोगों का एकदम से सारा प्लानिंग गड़बड़ा गया। तो सरकार ने बोला चिंता मत करो, हम एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ पीपल के लिए ये बेनिफिट लेके आए हैं कि जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, ये बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में आपको, इनकम कैलकुलेशन में चेंज नहीं है। अगर लॉस आ रहा है इंडेक्सेशन के बाद तो आपको लॉस नहीं मिलेगा, इनकम तो 60 ही रहेगी, लेकिन जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तब आप दोनों से कंपेयर करोगे। नाउ इन दिस केस दे हैव गिवन द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कंसिडरिंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो जाती है, देखो 25 lakhs पे इंटू 376 डिवाइडेड बाय 184 इज योर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस अगर मैं करती हूँ इसमें से 1,15,00,000, तो मेरा 63 lakhs का आता है गेन विच इज बिफोर एग्जेम्पशन। अब इसमें से मैंने 30 लाख और घटा दिए, तो मेरा 33,91,304 का क्या आ जाता है, मेरा कैपिटल गेन। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी 20%, ये मेरा पुराना प्रोविजन होता 678,261, राउंड ऑफ करके इट इज 261, राइट। नाउ इफ आई कंपेयर दिस विद द न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन सिंपल ही है, 60 लाख पे 12.5%, तो 60 लाख पे 12.5% मेरा हो रहा है 7.5 लाख। दिस एक्सेस शैल बी इग्नोर्ड। So any property which is purchased prior to 23rd of July 2024 but sold after that, then you have to do this comparison. तो मेरे लिए tax liability will be 678,261, और दोनों को जब मैं ऐड कर देती हूँ, मतलब मेरा 112A का टैक्स और मेरा प्रॉपर्टी सेल का टैक्स, मेरा टोटल टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज 1512636। सिंपल, बहुत ध्यान से करना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, वो ऊपर सिर्फ कैपिटल गेन का बोला था, टोटल इनकम भी निकालनी है। तो कैपिटल गेन की इनकम तो एज इट इज हम उठा लेते हैं, हमने देख ही लिया है पहले से ही। अपार्ट फ्रॉम दैट रेम्यूनरेशन जो फर्म के हाथ में अलाउ हो गया है, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 35 लाख विल बी माई टैक्सेबल इनकम, है ना, 35 लाख मेरी इनकम है। अब इसके ऊपर तो स्पेशल रेट लग रहा है 112A, 35 lakhs पे आई विल हैव टू कैलकुलेट टैक्स एज पर द स्लैब रेट्स। तो क्या है, कौन सी स्लैब रेट लगाओगे आप, नए वाले स्लैब रेट्स लगाओगे। सो हम लगा देते हैं फटाफट से, 24 लाख से ऊपर जितना भी है तो 3,30,000 तो वैसे के वैसे ही आ जाएगा बैलेंस। सो 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5%, देन 10%, देन 15%, देन 20%, एंड देन हमारा 25%। सो ये प्लस मेरा उधर जो 3,30,000 आ रहा था, सो 6,30,000 इज माई टैक्स ऑन अदर इनकम दैट इज 35 लाख एज पर द न्यू स्लैब रेट दैट इज द 115 BSE डिफॉल्ट रेजिम। ये हमारा पूरा इनकम पूरा टैक्स आ गया। एज द इनकम इज एक्सीडिंग 1 crore, आपके केस में बीइंग इंडिविजुअल द सरचार्ज एप्लीकेबल विल बी 15%। सो 50 से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से ऊपर है यहाँ पर इस केस में, तो हम 15% वाले स्लैब में आ गए हैं, तो हमारे ऊपर 15% से सरचार्ज लग जाएगा। सो 214,636 इंटू 115% प्लस 4% का सेस, सो 2562,590
is our final tax liability. 214636. सॉरी 2142, भाई मैं बोलूँ अमाउंट इतनी कम क्यों आ रही है। 2142,636 प्लस 15% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस, करेक्ट, 2562590, है ना। चलो, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज देयर? 1,63,00,000 प्लस 2562590 इज माई फाइनल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। चलो आगे चलते हैं। What amount of tax deducted at source can be or TCS can be claimed as credit by Kunal Verma while paying self assessment tax? तो कितना क्रेडिट आप क्लेम कर सकते थे वो पूछा है उसने। आपने क्लेम नहीं किया वो बात अलग है, टीसीएस आप भूल गए क्लेम करना, बट आप क्लेम कितना कर सकते थे। तो रेम्यूनरेशन पे जो नया सेक्शन है 194T वो अप्लाई हो जाएगा। सो 3.5 लाख का 10%, 35 लाख का 10%, दैट इज 3.5 लाख। 194IA आपका जो प्रॉपर्टी सेल हुआ है, सो प्रॉपर्टी सेल हुआ है उसके ऊपर आपके केस में आपका जो है टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। सो दैट इज अ क्रेडिट विच यू कैन क्लेम। सो द परचेजर मस्ट हैव डिडक्टेड टैक्स बिकॉज द प्रॉपर्टी वैल्यू इज मोर देन 50 lakhs। 1% के रेट से आएगा तो 1,15,000 इधर टीडीएस हुआ आपका। और आपका लास्ट है टूर ऑपरेटर, जो आपने टूर ऑपरेटर को टीसीएस पे किया होगा 28 लाख का जो आपने टूर पैकेज परचेज किया है। तो 28 lakhs में से फर्स्ट 10 lakhs के ऊपर आपका रेट विल बी 5%, बैलेंस के ऊपर 10%। सो यहाँ पर 3,60,000 प्लस आपका 10 lakhs के ऊपर 5% प्लस 3,60,000 इज 4,10,000। सो 4,10,000 विल बी योर टीसीएस, है ना। टोटल इतना टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट आपका हुआ है, इतना क्रेडिट हम क्लेम कर सकते थे, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोसेसिंग के समय पर अगर आपने गलत रिकॉर्डिंग करी है, अगर आपने सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं फर्निश करी है, तो क्या 143(1) के समय पर आपका गेन रिकम्प्यूट हो सकता है? यस। तो सपोज अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बट आपने फीड करते समय मतलब आईटीआर फॉर्म में भरते समय गलती से उसको शॉर्ट टर्म में फीड कर दिया, तो प्रोसेसिंग के समय पर वो रेट कौन सी लगा देगा? शॉर्ट टर्म वाली, है ना। वो अलाउड है, वो परमिटेड है। क्रेडिट ऑफ टीसीएस जो 26 पे दिख रहा है वो अलाउ होना चाहिए, भले ही आपने रिटर्न में नहीं क्लेम किया है। नहीं, दे विल नॉट गिव यू एनी क्लेम विच यू हैव नॉट मेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। यू हैव टू मैंडेटरी क्लेम द टीसीएस क्रेडिट। लेवी ऑफ इंटरेस्ट अंडर 234 एबीसी, यस, इंटरेस्ट लगा देंगे वो लोग अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। एज पर द रिटर्न इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। तो प्रोसेसिंग में ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आपने क्लेम नहीं किया है तो टीसीएस का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू क्लेम इट इन द रिटर्न ऑफ इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लीगल पोजीशन? अगर 264, तो हमने 264 में एप्लीकेशन करी थी अगेंस्ट 143(1), लेकिन हमारा उसने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत है। उसके पास पावर है कि वो रिलीफ दे सकता है प्रोवाइडेड द ऑल अदर कंडीशंस लाइक टाइमलाइन एंड ऑल। आई एम अज्यूमिंग कि वो फुलफिल हुआ है टाइमलाइन वगैरह, बट इफ ऑल द अदर थिंग्स आर करेक्ट देन ही कैन नॉट रिजेक्ट बेसिस दिस कि भाई तुमने खुद ही गलत भरा तो अब हमारे पास मत आओ। नहीं, यू हैव दैट ऑप्शन टू गेट द रिलीफ फ्रॉम द कमिश्नर। सो पीसीआईटी हैज द पावर, he can give the relief and he should obviously consider in this cases because it's a genuine mistake made by the assessee, है ना। चलो आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज एन इंडिपेंडेंट इलस्ट्रेशन। हाँ, सो ये हमारे केस सिनेरियो से रिलेटेड अभी जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए। लास्ट क्वेश्चन, सर्च वाज कंडक्टेड ऑन मिस्टर ए इन मार्च 26। प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड, ब्लॉक असेसमेंट शुरू हो गया। रेगुलर असेसमेंट जो एवाई 24-25 का चालू था वो होल्ड पे चला गया, अबेट हो गया। द असेसिंग ऑफिसर कंप्लीटेड द ब्लॉक असेसमेंट। इसके आगे द मिस्टर ए फाइल्ड एन अपील एंड द अपील अथॉरिटी एन्योल्ड द ब्लॉक असेसमेंट। उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं, गलत है तुम्हारा असेसमेंट, क्योंकि तुम्हारा ब्लॉक असेसमेंट एनोल हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Annulment has no impact since the block assessment was completed. No, this is not correct. Earlier abated assessment will automatically revive. Annulment closes the right to reassess the income falling within that block period and must seek directions from tribunal. नहीं, so basically जब आपका
सर्च शुरू होता है, ब्लॉक असेसमेंट शुरू होता है, तो जो ऑनगोइंग असेसमेंट होता है वो अबेट हो जाता है वहीं पर। अब अगर आपका ब्लॉक असेसमेंट खत्म हो गया, एनऑल हो गया, तो जो अबेट हुआ था वो रिवाइव हो जाएगा वापस से, है ना, जो होल्ड पे चला गया था वो रिज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका AY 24-25 विल अगेन गेट resumed, that is revived. ठीक है, so this is how the assessment would be then carried forward as per the normal provisions of the act. So these are the objective questions. A good RTP, I would say the case scenarios were a bit different. सेकेंड वाला फिर भी कंपैरेटिवली इजी था, फर्स्ट वाले में थोड़ा सा उन्होंने FTS वगैरह का ट्रिकी पोर्शन डाला है. सो पे अटेंशन, solve the questions very properly whenever you are reading the illustrations, whenever you are reading the case scenario, pay attention to the basic and minute details, and then accordingly you have to solve the question. Okay, so I hope you are able to understand. Try to solve it at your own first. If you are unable to understand, obviously we discussed each and every detail very properly. Still, if you have any doubts, feel free to reach out, and if you have any other issues relating to income tax, you can always connect with me. So all the very best for your examinations.